मैम Yes. मैम आप क्या So in today's English class, we are going to continue with the same topic, that was adjectives and the kinds. So before we begin today's kinds, we had covered 4 yesterday. We'll be covering the next 4 today. But before that, let us see what you learned yesterday. So let us, please everybody will look at the board and the first sentence. Who'll read this first sentence? And the child with the name iPad, please switch on your camera and read out the first sentence. The child with the name iPad. Hanchi. Who was it? Who's it, bete? Switch on your camera and answer what I'm asking. Bete, either you switch on your camera or I'll remove you from the class. Very good. Fine. So this is what I'm going to do. If you'll not answer, say, ma'am, I don't know. That yes, but read out the first sentence. First sentence, please. Many children were playing in the garden. Yes, many children were playing in the garden. So Hargun, can you please tell me what is the adjective here? And the kind also, of course. Others also have to look at the board and try to know the answer, to tell the answer, means they should know the answer. Hargun, please hurry up. What is the adjective here, bache? But don't go blank, say yes, no, say something. Many Raj. children. Many children, okay, fine. Rajveer, what is the adjective here, bete? Unmute yourself and speak up the answer. Rajveer. Playing. Very good, Rajveer. Playing कोई action बता रहा है ना, adjectives action बताते हैं ना. Playing here is a verb. Manminder. हाँ बेटे, keep on guessing. Very good. You don't know what is noun and what is verb. Manminder, please. Ma'am, can I? Manminder. Many. Okay. Yes, and what is the kind? What is the yes, kind? Yes, ma'am. Manminder, tell me the answer, bete. What's taking you so long? Ma'am, many is the numbers. Wait a minute. Wait a minute. Who told the answer? Manminder, was it you? Ma'am, yes. Arshdeep, Ma'am, पहले मैंने mute दिया yourself. था. Arshdeep, mute yourself. Bete, the child to whom I'm asking, only that child will unmute himself. Yes, many. Okay, so many here, she says, is the adjective. And what is the kind? Ma'am, numbers. Number. Why is it number? Why not quantity? Quickly, bete, why is it number? Why not quantity? Ma'am, I don't know. So how did you tell the answer then? Manthan, can you please explain? Why is it adjective of quantity? Adjective of number, and why not quantity? Yes, Manthan? Nobody can explain this thing. Ma'am, I can. Ma'am, I can. Ma'am, can I? Ma'am, can I? Ma'am, Ma'am, can I? Ma'am, you are muted. What is can I? What is can I? Have some etiquettes, have some manners. Yes, Girisha. मैम जो नाउन है हम उसे काउंट कर सकते हैं. Yes, because ये जो adjective है किसके लिए यूज हो रहा है? चिल्ड्रन के लिए यूज हो रहा है और चिल्ड्रन जो है वो काउंटेबल है. That's why. But still somebody is unmuted. Right. Now, Akanksha, unmute yourself and read the second sentence. मैम कहाँ पर है? मैम मेरे को यही नहीं दिख रहा. चलिए आप फिर ऐसे कीजिए, पहले ढूंढ लीजिए कहाँ पर है. Right?
एकमदीप, एकम, Yes, ma'am. हाँ जी, read the second sentence from the board. Quickly. जल्दी रीड कीजिए, एकम, अनम्यूट कीजिए खुद को. So the next fifth kind today we are going to do is adjective. Possessive adjectives. POSSE. Now what is possessive? Possess करना मतलब किसी चीज का आपके पास होना. जब कोई चीज आपको बिलोंग करती है, आपके पास होती है, तो हम बोलते हैं I possess this thing, right? So possessive adjectives वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताएं कि वो चीज किसकी है. जिन वर्ड से हमें ये पता चले कि वो चीज किसकी है, उन्हें हम possessive adjectives कहते हैं. If I say this is my book, अब यहाँ पे जो नाउन है book, वो किसकी है? बुक किसकी है? बुक मेरी है. कौन सा वर्ड बता रहा है कि वो किसकी है? my वर्ड बता रहा है कि वो बुक किसकी है. So here my will be possessive adjective. my हमारा यहाँ पे possessive adjective होगा क्योंकि my वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वो बुक किसकी है, right? So these kinds of words जो हमें ये बताएं कि चीज किसको बिलोंग करती है. Please give me your pen. किसका पेन? whose pen? whose का आंसर देते हैं. जो possessive adjective होते हैं वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं? whose, कि वो चीज किसकी है, right? So please give me your pen. किसका पेन? your pen. So your here is possessive adjective. So the words that tell us कि वो चीज किसको belong करती है are called the possessive adjectives. Let us see what are the words. So अगर मेरी कोई चीज है तो my. अगर हमारी कोई चीज है, दो लोगों की है, दो से ज्यादा की, तो हम उसकी जगह क्या बोलेंगे? our. my, our. अगर तुम्हारी कोई चीज है सेकंड पर्सन के लिए your, right? थर्ड पर्सन के लिए अगर किसी बॉय की है his pencil, किसी गर्ल की है तो her pencil, बहुत सारे लोगों की है तो their pencil. So ये जो words हैं, ये सारे words क्या है? हमारे possessive adjectives हैं. My means मेरा, our means हमारा. This is my bag, this is our bag. This is your bag, तुम्हारा bag. This is his bag, ये उस लड़के का bag है. This is her bag, ये उस लड़की का bag है. This is their bag, ये उन सबका bag है, right? So ये सारे words हमारे possessive adjectives हैं और ये words हमें बताते हैं कि वो चीज किसकी है. Clear? This much is clear? Possessive. Now, if I tell you this sentence, please look here. This bag is mine. अब यहाँ जो mine word है, ये भी यही बता रहा है कि ये बैग मेरा है. So is mine an adjective here? Quickly write your answers in the chat box. What is mine here? Okay, Garvita is saying no, it is not an adjective. Why? What is it? What is it then? It is a okay. Hargun, Jasmine is saying it's a pronoun. Very good. Okay, very good. Yes, this is possessive pronoun here. Why is it possessive pronoun? क्योंकि क्या इसके बाद कोई noun आ रहा है? क्या इस sentence में कोई noun आ रहा है? इसके बाद no, कोई sentence में इसमें noun नहीं आ रहा. So possessive adjective का भी same rule रहता है. बेटा stop writing and listen to me now. Possessive adjective का भी यही rule है कि it is always followed by a noun. उसके बाद हमेशा कोई noun आएगा. यहाँ mine word बता तो रहा है किसका है बैग, लेकिन क्या इसके बाद कोई noun आ रहा है? No, इसके बाद कोई noun नहीं आ रहा. इसका मतलब कि adjective नहीं है, ये possessive pronoun है. Then is there any other adjective here? Is there any other adjective in the sentence? Write in the chat box. Don't unmute yourself. Somebody is unmuted.
Yes, very good, Girisha, very good. Yes, इस sentence में हमारा adjective है this. Very good. So you have to be very careful कि कौन सा sentence adjective है और कौन सा sentence pronoun है. Right? Okay. So this was all about the possessive adjective and possessive Excuse adjectives. me, ma'am. Yes, बेटे, yes. मैम अगर इस टाइप का सेंटेंस हमें एग्जाम में आई तो मैम दिस का मैम हमने एडजेक्टिव लिखना है. आपको अगर सपोज क्वेश्चन आता है पिक आउट द एडजेक्टिव एंड टेल द काइंड, तो आप दिस को पिक आउट करेंगे. अगर क्वेश्चन होगा पिक आउट द प्रोनाउन एंड टेल द काइंड, तो आप माइंड को करेंगे. जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस होगी अकॉर्डिंगली यू विल सी. ओके, नाउ नेक्स्ट काइंड इज इंट्रोगेटिव. नाउ वी हैव डन all these last year also. Ains will quickly tell me what is interrogative adjectives. Ains, unmute yourself. Ains, am I audible bete? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे. What is interrogative adjectives? Ains, I can see you see your this display photograph. Why you not? Okay, Abhineet, unmute yourself. Abhineet. मैम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. हाँ जी बोलिए loudly please. मैम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं मैम जो जिनके पीछे WH वाले वर्ड्स होते हैं, लाइक हु, whom, which. मैम ये जिनके सारे पीछे या जो बिगिन होते हैं WH मैम वर्ड से? बिगिन में होते हैं, उनके बाद मैम वो नाउन, जिनके बाद नाउन आता है वो मैम एडजेक्टिव होते हैं. Very good. So the question words जो sentences जिन sentences में words जो हैं question words से जो begin हो रहे हैं और उसके बाद noun आ रहा है, जैसे whose pen is this. Now please read carefully. यहाँ पे WH word है. इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, ये किसका पेन है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना हमसे. अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट वर्ड चेक करना है हमने. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है. दैट मीन्स इट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. अगर मेरा वर्ड होता हु इज कमिंग टुडे. नाउ अगर आपको ये सेंटेंस आया तो आपने क्वेश्चन वर्ड तो देख लिया, ये क्वेश्चन वर्ड है. यस, इट इज इंट्रोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है. लेकिन अब नेक्स्ट चीज हमने चेक कर लिया कि क्या इसके बाद नाउन आ रहा है. नो, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, वर्ब आ रहा है. ऐसे केस में क्वेश्चन तो पुट किया जा रहा है, लेकिन वो किसके लिए किया जा रहा है? किसी पर्सन के लिए किया जा रहा है. सो इट विल बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अगेन इसमें भी सेम रूल है, क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए लेकिन उसके बाद क्या आना चाहिए? कोई नाउन आना चाहिए. If there is a verb after that, then it becomes a pronoun. Right? Clear to everybody? Should I move further? We have done this in class 4 also, 3 also. So let us move to the next one, and the next one is a new one. This is for the first time that you are doing it, and it is proper adjective. Have you ever heard this word proper somewhere? Proper word कहाँ पहले पढ़ा है? जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में. ग्रामर में हमने proper word कहाँ पढ़ा है? Yes, very good. भूवी मैथ्स में पढ़ा है. Very nice, very good. Proper nouns हमने पढ़े हैं. What are proper nouns? Proper nouns होते हैं special names, है ना? Do you remember? Of course you remember. Proper nouns are the special names. So जो proper adjectives हैं ये किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं. सपोज आई से इंडियन, इंडिया, सॉरी, आई से इंडिया. इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन है ना, स्पेशल नेम है एक कंट्री का. अब मैं इसी से एक एडजेक्टिव बनाऊं तो मैं बनाऊंगी इंडियन फोक डांस, इंडियन डांस. चलो, सो यहाँ पे इंडियन वर्ड जो बना है वो किससे बना? इंडिया से बना है. एक प्रॉपर नाउन से बना है. डांस है, डांस के बारे में बात कर रहे हैं हम. डांस है, नाउन है. कैसा डांस है, क्या बता रहा है उसके बारे में? कि वो इंडियन डांस है, इंडिया का डांस है. सो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. सपोज आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस.
मैं बोलती हूँ we should not buy Chinese products या Chinese goods, ठीक है। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है चीजें। अब कैसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए हमें, कैसी? चाइना की बनी हुई। चाइनीज वर्ड किससे बना? चाइना से बना है। सो इट इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी प्रॉपर नाउन से बना है। प्रॉपर नाउन क्या था? चाइना। उससे हमारा एक नया एडजेक्टिव बना चाइना का, चाइनीज, राइट। और वो किसके लिए यूज हो रहा है? इस वाले नाउन के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव्स हमेशा किसी नाउन के लिए यूज होते हैं ना। सो इस वाले नाउन के लिए हमारा ये वर्ड यूज हो रहा है। इसी, और ये किससे बना है? किसी प्रॉपर नाउन से बना है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? प्रॉपर एडजेक्टिव दे दिया, राइट। So we have been given some, yes, a few more examples are given, like Swiss chocolates. Now Swiss word जो है वो किससे बनता है? स्विट्जरलैंड से बनता है। स्विट्जरलैंड इज द नेम ऑफ अ कंट्री, उससे बना हमारा वर्ड स्विस। और चॉकलेट्स क्या नाउन। सो कैसी चॉकलेट्स, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या नाम है उसका? स्विस। स्विस यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सो जो सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी ना किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, किसी नाम से बनते हैं, राइट। और वो किसी, ऑब्वियसली वो किसी नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, इसलिए तो एडजेक्टिव है। क्लियर है ये सबको? इज इट क्लियर? प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्लियर हो गए क्या होते हैं? Similarly, one more example is given in the books. It's French wines. So French word कहाँ से बना है? फ्रांस से बना है, ठीक है। So French wines, यहाँ पे French हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। Okay. Now let us see, and the last one that we have, again that is a new one. The last one that we are going to do today is a new one again for you. It is distributive डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अभी आपने नाम याद रखना है कि इसे क्या बोलते हैं। यू मस्ट रिमेंबर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में 4 वर्ड्स आते हैं। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज 4 वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? ईच, एवरी, नीदर एंड ईदर। इसे इधर भी बोल देते हैं, आइदर भी बोल देते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में यही 4 वर्ड्स आते हैं हमेशा। यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स, ईच, एवरी, नीदर, ईदर। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी? ईच कहाँ यूज करते हैं और एवरी कहाँ यूज करते हैं? यस, अलीशा वालिया, where do we use each and where do we use every? What is the difference between the two? मैम ईच मतलब मैम हर एक, मैम मतलब सारी चीजें। मैम इधर मतलब मैम जैसे My question was each and every में क्या डिफरेंस है? ईच एंड एवरी में मैम ईच मतलब मैम सभी, एंड एवरी मतलब मैम रोज, डेली, जैसे मैम। नो, ईच मीन्स हम ईच यूज करते हैं जब हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ईच वन ऑफ यू कैन टेक 1 टॉफी। आप दोनों ही एक टॉफी ले सकते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू इन नंबर, किसी भी 2 पर्संस के बारे में, 2 थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पे ईच वर्ड यूज करते हैं। सो ईच इज यूज फॉर 2, ठीक है। ईच वन ऑफ, मैम कहते हैं 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो मैम क्लास में कहते हैं ईच वन ऑफ यू कम हियर, दोनों यहाँ पे आ जाए, ठीक है। सो वो हो गया क्योंकि 2 पीपल है। अगर 2 से ज्यादा, अगर सपोज सारी क्लास लड़ रही थी और मैम ने एंटर किया और सारे बच्चे एक दूसरे लड़ रहे हैं, तो मैम कहते हैं एवरीवन, बोलते हैं ना, एवरीवन विल स्टैंड अप, राइट। सो एवरी वर्ड यूज होता है जब 2 से ज्यादा होते हैं, तो हम यूज करते हैं एवरी वर्ड, और 2 के लिए हम यूज करते हैं ईच, राइट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलते हैं ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, इसका मतलब दोनों बॉयज अपनी एक एक करके टर्न लेंगे। ईच मतलब दोनों, राइट, 2 के लिए यूज होता है। अगर मैं बोलती एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसका मतलब सब लोग, जितने भी लोग हैं, 2 से ज्यादा जितने भी लोग हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। सो ईच वर्ड एंड एवरी वर्ड में ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगेन ये वाले जो एडजेक्टिव्स हैं, इनमें भी
नाउन आना चाहिए बाद में, ठीक है। जैसे ईच बॉय वॉज पनिश्ड, अगर मैं बोलती हूँ ईच बॉय वॉज पनिश्ड, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, ईच बॉय वॉज पनिश्ड, सो यहाँ ईच वर्ड क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या इसके पीछे नाउन आ रहा है, यस इसके पीछे नाउन आ रहा है। सो दिस अगेन इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है कि दिस मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन, राइट। Every girl was appreciated. Every के बाद क्या आया, गर्ल आ रहा है, so every here is distributive adjective. These two are clear? Should we move to the next one? Okay. The next word है हमारा either and neither. मैम आई हैव अ डाउट। Yes बेटे प्लीज। मैम अगर एवरी के पीछे वन लग जाए मैम एवरीवन, तो मैम वो प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं बनेगा। नो, वो एडजेक्टिव नहीं होगा। यस बेटे। Excuse me, ma'am. Ma'am, Please each और repeat. every either और neither का क्या हुआ? मैं बताने लगी हूँ। That's what I'm going to speak now. Either मतलब दोनों में से एक, दो लोग होंगे और दोनों में से जब एक को हमें चूज करना होता है तब हम वहां पे either लिखते हैं। मैं कहती हूँ if I am calling one of I'm calling कि एक बच्चा आ जाओ, और दो बच्चे अपने हैंड रेस करके खड़े हो जाते हैं, तो दो है ना मेरे पास चॉइस, लेकिन मुझे तो एक ही की हेल्प चाहिए, देन आई विल से either of you will come here, दोनों में से कोई भी एक आ जाओ। सो इधर वर्ड यूज होता है जहां पे हमें दो में से एक को चूज करना होता है। इधर मीन्स दोनों में से कोई भी एक, राइट, एंड नीदर मीन्स दोनों में से कोई भी नहीं। जब करना होगा सेलेक्ट, इधर इज पॉजिटिव, नीदर इज नेगेटिव। मैं कहती हूँ नीदर यू विल कम नॉर ही विल कम, है ना, नीदर ऑफ यू विल कम, दोनों ही नहीं आओ, ठीक है। अब आप सपोज मार्केट जाना चाहते हैं, मम्मा पापा टू व्हीलर पे जा रहे हैं, आप दोनों ब्रदर सिस्टर कह रहे हैं कि हम दोनों नहीं जाना, तो मम्मा कहते हैं कि नहीं एक ही जाना जा सकता, तो मम्मा क्या कहेंगी, इधर ही और यू विल गो, ठीक है, दोनों में से एक ही जाना जा सकता है, इधर ऑफ यू विल गो। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मम्मा कहते हैं कि दोनों को नहीं लेके जाना, तो बोलते हैं निदर, दोनों ही नहीं, राइट। सो इधर मीन्स दोनों में से एक एंड निदर मीन्स दोनों ही नहीं। मीनिंग समझ आ गया दोनों वर्ड्स का, इधर और निदर का। सो इफ यू टेक द एग्जांपल, अगर मैं बोलती हूँ इधर you can take either road। अब मेरे पास सपोज मैं कहीं जा रही हूँ, वहां पे दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, तो मैंने किसी से पूछा कि कौन से रास्ते से जाऊं, और मुझे पर्सन कहता है दोनों में से किसी भी एक पे चले जाओ। सो यू कैन टेक इधर, एंड रोड क्या है, नाउन है। अगेन इसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है कि इसके बाद नाउन आना चाहिए। सो अगर कोई मुझे कहता है यू कैन टेक इधर रोड, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक, इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। अगर मैं नीदर का एग्जांपल लूं, मैं लिखूं नीदर आंसर इज राइट। सपोज मैंने किसी बच्चे ने मुझे आंसर्स लिख के दिए और उसने एक ही क्वेश्चन के दो आंसर लिखे कि मैम ये दोनों ठीक है आंसर्स, और मैं कहती हूँ दोनों ही गलत है। सो अगर दोनों ही गलत है तो हम बोलते हैं नीदर। अगेन इसके बाद आंसर आ रहा है, और आंसर क्या है, नाउन है। सो इधर का मतलब दोनों में से कोई भी एक, नीदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। मैं कह रही हूँ नीदर आंसर इज राइट, कोई भी आंसर ठीक। इधर है, नीदर इज क्लियर। यस बेटा। मैम जो अगर